Hello students and welcome to the class. Today we are going to learn about the poem Beautiful Blue Planet. आज हम Beautiful Blue Planet कविता के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 के इंग्लिश रीडर के यूनिट 1 रीडिंग बी से लिया गया है. First I will recite the poem and then explain it, and after recitation and explanation you will get solving part of comprehension section also. इस वीडियो में पोयम के रेसिटेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ कॉम्प्रहेंशन सेक्शन का सॉल्विंग पार्ट भी अवेलेबल है. दिस पोयम इज रिटन बाय सरफैनो द नाइट. इस कविता को सरफैनो द नाइट के द्वारा लिखा गया है. So, before starting the poem, let me introduce the poet of this poem. Apart from the poem Beautiful Blue Planet, he has given a rich collection of poems. For example, A Cup of Coffee, A Little Ray of Sunlight, A Not So Perfect Fairy Tale, A Short Ode to a Very Long Poem, Departed Too Soon, Retirement Life, and many more. First, I will recite the poem and then explain it briefly. Here's the poem. Looking down at you, planet Earth, I remember you as a beautiful blue. Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. Your rainforests are all gone now, and your ground is a sickly brown. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? Your white clouds once held fresh waters, now they are filled with acid rain. Your plains are barren with erosion, they were once overflowing with grain. When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. Didn't your stewards even notice before they started to gasp and wheeze? Could the powers that be not save you from such dismal end? You were so right in killing them off. Now you can begin again. Will your next caretakers be smarter and take better care of you? I pray that they learn to be protectors. We miss your beautiful blue. Now I will explain the poem line by line. The poet talks about the damages done to the fresh environment of this earth. कवि पृथ्वी की दुर्दशा को देखकर उसके पहले की सुंदरता को याद करता है और कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है. Looking down at you, planet Earth, I remember you as a beautiful blue. Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. नीचे तुम्हें देखते हुए नीले पृथ्वी, मैं तुम्हें याद करता हूँ कि तुम एक सुंदर नीली पृथ्वी हो. अब तुम्हारा महासागर तेल से काला हो गया है. ध्यान से देखो, तुम्हें मालूम है कि यह सच है. Your rainforests are all gone now, and your ground is a sickly brown. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? तुम्हारे वर्षावन सब चले गए हैं. अब तुम्हारी भूमि बीमार भूरे रंग की हो गई है. विश्व में ये क्या हो रहा है? उन्होंने, जो लोग हैं यहाँ के, उनको बोल रहा है कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है. तुम एक सुंदर नीले गोल ग्रह हो. Your white clouds once held fresh waters, now they fill with acid rain. तुम्हारे सफेद बादलों में कभी ताजा पानी हुआ करता था, अब वे अम्लीय वर्षा से भरे हैं.
Your plains are barren with erosion. They were once overflowing with grain. तुम्हारी जो समतल भूमि वो नष्ट होकर बंजर हो गई है. Barren, BARREN. Barren means बंजर. They were once overflowing with grain. Grain मतलब अनाज. Overflowing with grain मतलब तुम्हारी भूमि कभी अनाजों से भरी हुई थी. When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. तुम्हारे बादल प्रदूषण के कारण काले और भारी कब से हो गए? तुम्हारी हवा सांस लेने के लिए ठीक नहीं है. डेथली ग्रे मीन्स जो एकदम पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण जो क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल डेथली मतलब काले होते हैं, पर यहाँ पर बहुत ही भयानक रूप से पॉल्यूशन के कारण वो डेथली ग्रे हो गए हैं, वो बताया जा रहा है. Didn't your stewards even notice before they started to gasp and wheeze? क्या तुम्हारे संरक्षक ने ध्यान नहीं दिया मुंह से सांस लेने से पहले, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है? यहाँ पर स्टीवर्ड्स मीन्स पर्सन हु टेक केयर ऑफ सच पीपल और हाउस होल्ड. संरक्षक, स्टीवर्ड्स मीन्स संरक्षक. और यहाँ पे जो नीचे वर्ड लिखा है गैस्प एंड वीज, GASP, गैस्प एंड वीज मीन्स मुंह खोलकर जो हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, मीन्स सांस लेने में जो परेशानी होती है उसे यहाँ पर गैस्प एंड वीज से यहाँ पर समझाया गया है. Could the powers that be not save you from such dismal end? क्या वे शक्तियां जो थी तुम्हें नहीं बचा सकी ऐसे निराशापूर्ण अंत से? डिसमल एंड, DISML, डिसमल एंड END, एंड मीन्स निराशापूर्ण अंत. You were so right in killing them off. Now you can begin again. तुम अपने आप में एकदम सही थे उन्हें मारने में. अब तुम फिर से शुरू कर सकते हो. Will your next caretakers be smarter and take better care of you? क्या तुम्हारा अगला संरक्षक, केयरटेकर मीन्स संरक्षक, अगला संरक्षक पहले से बेहतर होगा और तुम्हारा ध्यान पहले से अच्छा करेगा? I pray, pray means प्रार्थना करना. I pray they learn to be protectors. We miss your beautiful blue. मैं प्रार्थना करता हूँ वे संरक्षक बनना सीखेंगे. प्रोटेक्टर्स मीन्स संरक्षक बनना सीखेंगे. अब हम तुम्हारे जो नीले ग्रह को बहुत मिस करते हैं. जो तुम पहले जैसे जितनी सुंदर थी, इतना सुंदर नीला ग्रह था, उसे हम बहुत याद करते हैं. Now come to the question answer part. Here you can see 4 questions are there. यहाँ आप 4 questions देख पा रहे हैं. हम एक एक करके सभी questions को solve करेंगे. So the first question is, in what sense have the expression beautiful blue and pretty planet been used by the poet? सुंदर नीला और सुंदर ग्रह की अभिव्यक्ति कवि के द्वारा किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? Beautiful blue and pretty planet have been used for beautiful earth. Beautiful blue और pretty planet का प्रयोग सुंदर पृथ्वी के लिए किया गया है. Next question is, what lessons has nature taught? Give reasons for your answer. प्रकृति ने हमें क्या शिक्षा दिया है? अपने उत्तर के लिए कारण बताएं. The nature has taught us to be aware of the deterioration of it. प्रकृति ने हमें सिखाया है कि हमें इसके हो रहे पतन के लिए सजग होना चाहिए. Deterioration means पतन. Our oceans have become black with oil. हमारा महासागर तेल से काला हो रहा है.
रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ, वर्षा वाले जो जंगल है, वर्षा वन अब नहीं है। ग्राउंड हैज बिकम सिकली ब्राउन, जमीन जो है वो वनस्पति से वंचित है। White clouds are filled with acid rain, सफेद बादल अम्लीय वर्षा से भरे हैं। Acid rain means अम्लीय वर्षा। We should save it from such dismal end, हमें इस भयानक अंत से पृथ्वी को बचाना है। For this we should become a smarter caretaker of it, इसके लिए हमें बुद्धिमानी पूर्वक हमारे पृथ्वी का संरक्षक बनना होगा। Here you can see the question number 3. Suppose that you are the beautiful blue planet. Human beings have caused several problems for you. List out the problems of that the makers of the planet face. Means मान लीजिए कि आप एक सुंदर नीले ग्रह हैं। मनुष्य आपकी बहुत सारी समस्याओं का कारण है। उन समस्याओं को आपको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है, जिन तत्वों के कारण इस ग्रह को सामना करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए रिवर और एनिमल्स का दे दिया गया है एग्जाम्पल यहाँ पर। जैसे रिवर जो है वो बोल रहा है आई कैन नॉट फ्लो फ्रीली, पीपल थ्रो गार्बेज इनटू अस, मैं फ्रीली फ्लो नहीं कर पा रहा हूँ, बह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझ में पूरा कचरा डाल देते हैं। इस प्रकार से ट्रीज, एयर, बर्ड्स और सॉइल का भी दिखना है। ओके, हियर्स द आंसर। फर्स्ट वन इज रिवर। आई कैन नॉट फ्लो फ्रीली, मैं स्वतंत्रता पूर्वक बह नहीं सकती। पीपल थ्रो गार्बेज इनटू अस, लोग कूड़ा कचरा हम में फेंकते हैं। द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो मेक मी इम्प्योर, कल कारखानों से निकलने वाला दूषित जल भी मुझे अशुद्ध कर रहा है। नेक्स्ट वन इज ट्रीज, पेड़। वी कैन नॉट लीव अवर ओन लाइफ, हम अपने स्वयं के जीवन को नहीं जी सकते हैं। पीपल में कट अस whenever they need the place, लोगों को जब भी जमीन की जरूरत पड़ती है वो हमें काट देते हैं। नाउ एयर, हवा। हवा क्या बोल रही है सुनिए। आई कैन नॉट मेक द एयर प्योर, मैं हवा को शुद्ध नहीं कर सकती। द स्मोक ऑफ प्लांट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर वेरी हार्मफुल फॉर मी, संयंत्रों से, मोटर गाड़ियों से जो निकलने वाले धुआं है वो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। इफ ट्रीज आर लेस आई कैन नॉट मेक द एयर प्योर, यदि पेड़ कम होंगे तो मैं हवा को शुद्ध नहीं कर सकती। नाउ द नेक्स्ट वन इज बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पक्षी। Trees are being cut continuously where we live in future. पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, भविष्य में हम कहाँ रहेंगे। Where we migrate, हम उड़कर कहाँ जाएंगे। Scorching heat, impure air, impure water, how will we survive? झुलसाने वाली गर्मी, अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, हम कैसे जीवित रहेंगे। Animals means pashu. We have no food to eat in the plains. मैदानी क्षेत्रों में हमारे खाने के लिए भोजन नहीं है। Varieties of fruit trees have been vanished. विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ गायब हो गए हैं। We are wandering for seeking shelters. हम लोग शरण के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। Now last one is soil, मिट्टी। Gradually I am losing my fertility. क्रमशः मैं अपनी उर्वरा शक्ति को
खो रही हूँ। टॉप सॉइल लेयर इज वॉश्ड अवे इन फ्लड, मिट्टी की ऊपरी परत बाढ़ में बह गई है। I am affected by the released chemicals and contaminated water from the industries. मैं उद्योगों द्वारा निकले हुए रासायनिक द्रवों और अशुद्ध पानी से प्रभावित हूँ। Last question is question number 4. Who are the next caretakers? अगला संरक्षक कौन है? So the answer is our future generations. Our future generations are the next caretakers. अब हमारा अगला संरक्षक हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो है। Now come to the next part. List in the table below the changes that have taken place in different aspects of nature and environment around us. नीचे जो टेबल बना हुआ है इसमें हमें उनकी सूची बनाना है, उन चीज़ों की सूची बनाना है जो बदलाव आए हैं नेचर में और एनवायरनमेंट में। जो फीचर्स हैं जैसे यहाँ पे ओशियंस, फॉरेस्ट, क्लाउड्स, प्लेन्स, इन ये जो पहले कैसे थे, हाउ वर दे बिफोर, इस कॉलम में हमें भरना है कि हाउ वर दे बिफोर, पहले वे कैसे थे। नाउ इन द लास्ट कॉलम हाउ आर दे नाउ, अब वे कैसे हो गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज द ओशियंस। ओशियंस जो हैं महासागर, पहले कैसे थे? फ्री फ्रॉम ऑयल, मीन्स तेल से मुक्त थे। नाउ अभी कैसे हैं? ब्लैक विथ ऑयल, अभी तेल से पूरा महासागर जो है वो काला पड़ गया है। द फॉरेस्ट्स, हाउ वर दे बिफोर, पहले कैसे थे? फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे, वर्षा वन। हाउ वर दे नाउ? बीइंग डिफॉरेस्टेड, मीन्स वर्षावन सारे चले गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, उन जंगलों की कटाई हो गई है। द क्लाउड्स, माइल्ड फ्रेश वाटर्स, पहले कैसे थे? माइल्ड फ्रेश वाटर्स, मीन्स फ्रेश वाटर से भरपूर थे। नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन, अभी कैसे हैं? वे जो बादल है, क्लाउड्स है, वो वर्षा जो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा वाले जो जल है उससे वो भरे हुए हैं। द प्लेन्स, प्लेन्स कैसे हैं? ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन, पहले कैसे थे? पहले अनाजों से लहलहाते थे जो जमीन थी, अभी कैसे है? हाउ वर दे नाउ? बैरन विथ इरोजन, अभी बंजर हो गया है जमीन। द एयर, हाउ वर दे बिफोर? एयर पहले कैसा था? पॉल्यूशन फ्री था, पॉल्यूशन से मुक्त था। अभी कैसे हैं? इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, अभी इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। केयर फॉर नेचर एंड द अर्थ, पहले किस प्रकार से नेचर का केयर किया जाता था, अर्थ का, पृथ्वी का और प्रकृति का केयर किस प्रकार से होता था पहले। सो राइट, मतलब सही तरीके से केयर किया जाता था। और अभी कैसे हो रहा है? लेस केयरिंग, अभी ज़्यादा केयर नहीं किया जाता है। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।